Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear students? Are you listening me? If voice is clear, please write it down in the chat box. Okay. So all of you can listen me easily. Okay. So today we are going to complete non-steroidal anti-inflammatory drugs. We have discussed the introduction, classification, briefly about the clinical uses and adverse effect in the last lecture. I hope you read from the books this topic. First, I will ask about the previous lecture. Can you tell me about the drugs that are included under the heading of non-steroidal anti-inflammatory drugs? Because classification is very important. Classification can help you to attempt the MCQs or some SCQs. And it will also helpful when you want to prescribe the drug for your patients. जब आप लोगों ने पेशेंट्स को ड्रग देनी होगी तो वो नाम से ही देनी होगी, ठीक है? तो आपको ये नाम आने चाहिए. It is very important and this is a very important topic theoretically as well as practically. आपकी whole life में एनाल्जेसिक्स या नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो है उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है. Daily you have to prescribe this group of drug for various patients. Okay, Tahreem, aspirin. No one else knows about the name of the non-steroidal anti-inflammatory drugs. Aspirin is a prototype drug. Although it is included in as an anti-inflammatory drugs, but it is not used nowadays for the treatment of inflammatory disorders because of its adverse effect. ओके सो आइबोप्रोफिन, सना, बाकी सब लोगों को भी याद है, इकरा, सीरत, ठीक है, पैरास्टामोल और एसिटामाइनोफिन, ठीक है, एसिटामाइनोफिन, ओके, सेलिकॉक्सिब. व्हाट इज सेलिकॉक्सिब? Rofecoxib. What is celecoxib? What is the difference between celecoxib and ibuprofen or aspirin? Is there any oh, very good, Ikra. It is a COX-2 inhibitor. It is a COX-2 inhibitor. What are the other drugs? First, we will discuss the classification. After that, we come to the other effects. Yes, other than the celecoxib, rofecoxib are the not only COX-1. Remember, Ikra, it is a non-selective. They are COX-1 as well as COX-2 inhibitor. Okay, it is not only inhibit the COX-1 enzyme. They are non-selective. All of you just remember, I think, two names from the list of non-steroidal anti-inflammatory drugs. 2 or 3 names, 4 names. Huh? Okay, I will tell you again. Please listen carefully. Non-steroidal anti-inflammatory drugs are classified into 2 groups. Number 1, non-selective COX inhibitors. Number 2, selective COX-2 inhibitors. Non-selective means that there are 2 types of COX enzyme, COX-1 and COX-2, and both are inhibited by the non-selective drugs. While in selective cases, the drugs only selectively inhibit the COX-2 enzyme. They have no effect on COX-1 enzyme. So COX-2 inhibitors are relatively safe in patient having peptic ulcer. अगर किसी को gastrointestinal problem है तो उसमें COX-2 inhibitors are safe because COX-1 involve in the normal physiological function of gastrointestinal tract, not COX-2. Clear? So the drugs that will not inhibit the COX-1 enzyme will not interfere in the normal function of stomach. Non-selective drugs are aspirin is the prototype drugs. Other drugs are ibuprofen, diclofenac, indomethacin, ketorolac, ketoprofen,
Solendic. Ibuprofen derivative is a flurboprofen, and then naproxen, mefenamic acid, paroxycam, and nebumetone. So the important drugs which come under the daily routine are the ibuprofen, diclofenac, paroxycam, mefenamic acid, naproxen, and these are the four drugs that are used commonly. What are those drugs? Ibuprofen, flurboprofen, naproxen, paroxycam, mefenamic acid, and diclofenac. Okay, these are the answers that are commonly used. Now, in COX-2 inhibitors, we have celecoxib, rofecoxib, nimesulide, meloxicam, and lumiricoxib. Most of the drug from this class has black box warning. ठीक है, black box warning means because these COX-2 inhibitor has relatively less effect on the peptic ulcer, but it causes more cardiovascular effect, and many deaths are observed after use of COX-2 inhibitors. So many drugs are banned nowadays, and in this group the commonly used drugs are meloxicam and nimesulide because they are relatively block the COX-2 enzyme. ठीक है, meloxicam, which came with the name of Melphax. Melphax is a very common drug, and if any patient having a stomach problem, then meloxicam safely given to that patient. Then nimesulide. These are the COX-2 and non-selective and selective COX-2 inhibitors. Acetaminophen not come nowadays under the heading of non-steroidal anti-inflammatory drug because acetaminophen has no inflammatory effect. Clear? Are you listening me? If there is a problem with the voice, you can write it down in the chat box. Okay. So acetaminophen, initially it was under the heading of non-steroidal anti-inflammatory drugs. जो आप पुराने एडिशन देखोगे बुक्स में, उसमें ये NSAIDs के हेडिंग में ही थी, but it has no anti-inflammatory effect, so now it is separated from this group. अब आप इसको NSAID की हेडिंग में मत लिखो, आप इसको या तो सेपरेट ऊपर लिख दो या एंड पे लिख दो कि this is not belong to this group, but it has analgesic and antipyretic effect. ये बुखार को और दर्द को कम करती है, and it is the safest drug. It is the safest drug. You can safely give in to the children, you can safely give in to the pregnant patient, you can safely give in to the older patient or anyone because it is a safest analgesics. ठीक है. The main problem with all NSAIDs are the peptic ulcer. ठीक है, peptic ulcer is the common adverse effect of these drugs. आप लोगों ने जब peptic ulcer पढ़ा होगा तो उसमें भी आपको बताया था कि ये 10% of peptic ulcer is caused by the drug, and the most common drug is NSAIDs. Then we have discussed about the aspirin. As you know, aspirin is a prototype drug. But it is not used nowadays as an anti-inflammatory drug, or it is not used for fever or pain because it can cause severe peptic ulcer, can cause severe gastrointestinal problem. That's why, because it produces the anti-inflammatory effects at very higher doses, and that doses are dangerous, or it causes more adverse effect. So aspirin is only used nowadays for which purpose? जी बेटा, स्क्रीन जो है वो रुकी हुई है क्योंकि हम अभी प्रीवियस अपना डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, अभी हमने नेक्स्ट स्टार्ट नहीं किया है. So can you tell me about the clinical use of aspirin nowadays? Quickly write it down in the chat box. किस कंडीशन में हम यूज करते हैं इसको, बताइए मुझे. मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, वेरी गुड. इट्स इजी कि आप उसको कहो कि इट इज यूज्ड एज ए प्रोफैलेक्टिक एजेंट इन कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स.
मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में फौरन नहीं देते, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में या कोई भी कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है तो उसमें लेटली दे देते हैं, बिकॉज देयर इज अ चांस टू डेवलप द थ्रोम्बस, थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना। ठीक है, तो इट इज अ एंटीप्लेटलेट ड्रग, इट इनहिबिट, नॉट यूज इन गाउट, नॉट यूज इन गाउट। ठीक है, इट कैन बी यूज। देखिए दो चीजें होती हैं, कोई भी चीज आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आप किसको प्रेफर करते हो? एक आप शॉप पर जाते हो, आपको थाउजेंड्स आपको सूट नजर आते हैं, कपड़े नजर आते हैं, लेकिन आप उसमें से एक या दो चूज करते हो ना, सारे नहीं चूज करते हो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया आपको पसंद आ रहे हैं, आपकी रेंज में आ रही हैं ये सारी चीजें। तो इसी तरह ड्रग्स भी जब हम चूज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू अवर क्राइटेरिया, पेशेंट की कंडीशन हम देखते हैं, पेशेंट का इकोनॉमिक स्टेटस देखते हैं, ड्रग की सेफ्टी देखते हैं, अवेलेबिलिटी देखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कंसीडर करते हैं। सो एस्प्रिन nowadays it is used as a cardioprotective. तहरीम आपने बिल्कुल ठीक कहा, it is a cardioprotective but not before any cardiovascular disorder. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आम बंदा एस्प्रिन लेना शुरू करे जी मुझे कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। अगर किसी को पोस्ट मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, अगर किसी को ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक है या कोई इस टाइप की कंडीशन है, उसमें हम एस्प्रिन, बिकॉज एस्प्रिन एट वेरी लो डोजेज एक्ट एज एन एंटीप्लेटलेट, और उन डोजेज पर वो ना पेन को रिलीव करती है ना फीवर को रिलीव करती है, just they block the thromboxane A2 into the platelets and inhibit the platelet aggregation and inhibit vasoconstriction. So by this action, they act as a cardioprotective. Clear? Because it is a very important and it can be asked in exam. We were on this slide yesterday in the last lecture. We were on this slide. It shows the different elimination of the drug at different doses. I have told you that at low doses it is eliminated by the first order kinetics, and 99% drugs eliminate by the first order kinetics. इसमें क्या होता है कि drug concentration or fraction of the drug is excreted per unit time. ठीक है, जो excretion है डिपेंड करती है जितनी बॉडी में concentration होती है, एंड इन दिस केस हाफ लाइफ जो है इसमें फिक्स होती है, इसमें हाफ लाइफ चेंज नहीं होती। ठीक है, सो इसकी 3.5 है। बट एट वेरी हायर डोजेस, 2 या 3 ड्रग्स हमारे पास ऐसी हैं जो कि हायर डोजेस में दे फॉलो द जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, दे फॉलो द जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। अगर आपको याद हो तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या था इसमें कि कांस्टेंट अमाउंट ऑफ द ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम इररिस्पेक्टिव ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जितनी मर्जी हो, सिर्फ एक मखसूस अमाउंट जो है वो ड्रग की एलिमिनेट होगी। सो इस कंडीशन में क्या होता है कि हाफ लाइफ वेरिएबल होती है, जितनी ड्रग की बॉडी में कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतनी ही देर में वो आधी होगी, तो उतनी ही ज्यादा उसकी हाफ लाइफ होगी, और इसी तरह क्लियरेंस भी उसकी वेरिएबल होगी। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ भी फिक्स होगी और क्लियरेंस भी फिक्स होगी। ठीक है, क्लियर है? The main effect of aspirin, as I told you, that they causes the gastric ulcer, they causes dyspepsia, gastric ulcer, heartburn, etc. It can cause hepatotoxicity, asthma, rashes, GI bleeding, renal toxicity, but these adverse effects are very rare. Another thing I think which is skipped from here, you should know the adverse effect. Please write it down. मैं इसको छोटा करके चलें, इसमें लिख भी देती हूँ. It causes, if it is used in children, अगर ये बच्चों में यूज की जाए at the age in young age या न्यूनेट्स में, तो और बच्चे को पहले से कोई वायरल इन्फेक्शन हो तो क्या होता है कि it can cause Ray's syndrome. It can cause Ray's syndrome. ठीक है, Ray's syndrome. This syndrome is characterized by hepatitis, liver problem, hepatotoxicity, and encephalitis. ठीक है, cerebral encephalitis. So child may die if it is not treated. So this is a
Yes, aspirin. This is a mainly effect of aspirin. That's why aspirin should not be given under the age of 12 years. अब जितने भी सिरप देखोगे बच्चों को दिए हुए वो सारे पेनाडोल, कालपोल या उसमें एसिटामाइनोफिन होती है या ब्रूफिन होती है, ठीक है। ब्रूफिन वगैरह के साथ ये चांसेस कम है क्योंकि एस्पिरिन जो है इट इज अ इरिवर्सिबल। क्या डिफरेंस है और एस्पिरिन का कि एस्पिरिन इज अ irreversible inhibitor of cyclooxygenase enzyme COX-1 और COX-2 का irreversible है। बाकी जितने भी NSAIDs हैं they are reversibly block the COX enzyme, ठीक है। so ये आपने जरूर याद रखना है because it is a very very rare adverse effect but it can be asked कि why aspirin should not be given in children under in young age, ठीक है। 12 ईयर्स से नीचे जो भी बच्चे होते हैं उसमें क्यों नहीं देते हैं? बिकॉज ऑफ द चांसेस ऑफ रेज सिंड्रोम, ठीक है। बट ऑलरेडी उनको वायरल इन्फेक्शन होता है। आप देखते हैं ना हमारे यहाँ जितने भी होते हैं ना अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं यूजुअली दे आर वायरल इन्फेक्शन। हमारे खांसी, नजला, जुकाम या जितनी भी चीजें होती हैं ना ये सारे कौन से इन्फेक्शन होते हैं? ये वायरल इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है। तो और हमारे यहाँ कोई टेस्ट नहीं होता इसलिए हमें आइडिया नहीं होता कि ये कौन सा इन्फेक्शन है, वायरल है या बैक्टीरियल है। हम उसके लिए एंटीबायोटिक देते हैं। बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं होता, वहां पर वो सिर्फ जो है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, एंटीबायोटिक नहीं देते, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर इन्फेक्शन वायरल होते हैं। तो रेस सिंड्रोम में क्या होता है कि अगर बच्चे को फीवर है, अब आपको नहीं पता जब तक आप टेस्ट नहीं करवाते कि इट इज अ बैक्टीरियल और वायरल। अगर वो वायरल फीवर है और उसमें आपने एस्पिरिन दे दी तो उसमें क्या हो सकता है? चांसेस हैं, जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को, एक बात आप अपने जहन में रखें, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को आप एस्पिरिन दे रहे हैं तो और वायरल इन्फेक्शन है तो रेस सिंड्रोम होगा, बट चांसेस होते हैं, सो वी विल नॉट टेक द रिस्क, ठीक है। बिकॉज रेस सिंड्रोम इज अ लाइफ थ्रेटनिंग, इट कैन कॉज एनकेफेलाइटिस, हेपेटाइटिस एटसेट्रा, सो इट इज अ वेरी सीरियस डिजीज। दैट्स व्हाई एस्पिरिन शुड नॉट बी गिवन। और हमारे पास दूसरी बेहतर ड्रग्स हैं, सो वी हैव नो नीड टू गिव एस्पिरिन। क्लियर? This slide, I am not going in the detail of this slide. This slide shows the aspirin toxicity, which is very, very, very rare. क्या है? बहुत rare है ये toxicity. ये कॉमन नहीं है बिकॉज एस्पिरिन कॉमनली यूज ही नहीं हो रही है और इसकी वैसे भी डोज जो है वो बहुत हायर है इवन एंटी इन्फ्लामेटरी, तो जो टॉक्सिसिटी है वो तो कहीं और ज्यादा हायर डोजेस पे प्रोड्यूस होगी। यू कैन टेक द पिक ऑफ दिस स्लाइड एंड just look at this because it shows various adverse effects that can occur at higher level। and इसकी toxicity को हम क्या कहते हैं? salicylism। ये आपने याद रखना है कि toxicity, aspirin toxicity is called salicylism, ठीक है। तो जो अच्छे हैं, जो पोजीशन के लिए ट्राई करना चाह रहे हैं वो इसको देख लें। जो आम स्टूडेंट्स हैं उनको बेशक कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं पूछा जाता, बाकी ये होता है कि आपकी लक होती है। एक हम जो चीजें आपको बताते हैं इम्पोर्टेंट, वो एक जर्नल व्यू होता है कि ये चीजें होती हैं या नहीं होती। बट पेपर सेटर मतलब पेपर जो है वो डिपेंड करता है पेपर सेटर पे। अगर उसका माइंड ऐसा है कि जिस स्टूडेंट्स को पास नहीं करना या स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट पेपर देना है तो इस टाइप की अनकॉमन चीजें ढूंढते हैं, अदरवाइज ये आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट आप देख सकते हो। ट्रीटमेंट ऑफ all toxicities are almost same with slight difference। सबसे पहले कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, आपके पास तो आएगा ही नहीं क्योंकि डेंटल में तो इमरजेंसी या इस तरह के पेशेंट नहीं होते, बट फिर भी जनरली आपको पता होना चाहिए कि इफ एनी पेशेंट विद came with higher doses or toxic doses then you have to maintain ABC, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन करना है, उसकी ब्रीदिंग देखनी है क्लियर है उसका चेस्ट या एयरवे, और उसके बाद जो है अगर वो फॉरन आ गया है तो आपने उसका गैस्ट्रिक लिवाज करना है, यानी रिमूव करना है फ्रॉम द ड्रग फ्रॉम द स्टमक। एक्टिवेटेड चारकोल जो लिखा हुआ है ये एब्जॉर्प्शन इनहिबिट करता है एब्जॉर्प्शन को, या इट विल बाइंड विद द ड्रग और एनी सब्सटेंस, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस के साथ ये बाइंड कर लेता है और उसकी एब्जॉर्प्शन को रोक देता है, ठीक है। एस्पिरिन हैज नो, एक और चीज आपने याद रखनी है कि एस्पिरिन हैज नो एंटीडोट, नो एंटागोनिस्ट। सो अगर एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी होती है तो हमारे पास कोई ऐसी ड्रग नहीं है जो हम देकर इसको उसका रिवर्स कर दें इफेक्ट को। वी हैव ओनली व्हाट वी कैन डू इज
we can enhance its excretion कि ये जल्दी से excreted out हो जाए, and it is a toxic drug, acidic drug. Aspirin is a acidic drug. तो अगर आपको याद हो जनरल फार्माकोलॉजी का, तो acidic drugs they are better excreted in alkaline urine, ठीक है, because it is not unionized, it will ionized in the opposite pH, ठीक है, जो भी opposite pH है, अगर acidic drug है तो वो alkaline urine में ionize हो जाएगी, और ionized form आपको पता है, it is water soluble and it is easily excreted from the body. अगर कोई अल्कलाइन ड्रग होगी तो वो एसिडिफिकेशन ऑफ द ड्रग हम करेंगे, एसिडिफाई करेंगे यूरिन को, तो वो उसमें एक्सक्रीट आउट हो जाएगी जल्दी, क्योंकि वो आयनाइज्ड हो जाएगी, ठीक है. अगर एसिडिक ड्रग है और एसिडिक यूरिन है तो वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है. सो आपने इसमें एक पॉइंट ये याद रखना है, बिकॉज इट कैन आस्क, आपका कोई एमसीक्यू आ सकता है कि which of the following is the way to reverse the effect of aspirin toxicity. तो उसमें आ सकता है आपको एंटीडोट है, या अल्कलाइन यूरिन है, या एसिडिक यूरिन है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि अल्कलाइनाइजेशन ऑफ द यूरिन कैन इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ एस्पिरिन. These are the contraindication: hypersensitivity, pregnancy, chronic liver disease, children under 12 years of age due to risk of Ray's syndrome. ये अब आप देख लो इसको, ठीक है. Then we come to the other important drug, second important drug in all NSAID, not in NSAID, except NSAID, is paracetamol or acetaminophen. Acetaminophen is very commonly used analgesic and antipyretic. It can be used safely in almost all people, like in children, in old elder peoples. And acetaminophen can be used in patients that have allergy, hypersensitivity to other NSAIDs. ठीक है. It is a quite safe. It has only one problem at higher doses, which we will discuss later on. So it is a para-aminophenol derivative. It is a weak or no anti-inflammatory effect. आप एक बात याद रखें कि acetaminophen has no effect on the COX-1 and COX-2 inhibitor. It has no effect on COX-1 and COX-2. ठीक है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है COX-1 और COX-2 पर, जिसकी वजह से इसका कोई एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट नहीं है. Research says that it blocks the other enzyme, COX-3 enzyme, and this COX-3 enzyme is present in the brain. This COX-3 enzyme is present in the brain. So paracetamol या acetaminophen has a central effect and centrally block the cyclooxygenase 3 enzyme and relieve the fever and pain. ठीक है, COX-1 और COX-2 पे नहीं है, ये आपने याद रखना है. अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एसिटामाइनोफेन का या पैरास्टामोल का आपसे पूछा जाता है तो आपने इसको इस तरह से आंसर करना है कि it has very weak or no effect on COX-1 or COX-2 enzyme, and it blocks the COX-3 enzyme that is present in the brain and relieve the pain and fever. So acetaminophen has no anti-inflammatory effect, it has no platelet effect, it has no uric acid effect, it has no hypersensitivity, no gastric acid effect. So it is a very safe drug. But it will not use in any inflammatory disorder. ये पेन कम करने के लिए तो हम दे सकते हैं, लेकिन इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए हम नहीं दे सकते. इसको हम कार्डियोवैस्कुलर या कार्डियोप्रोटेक्टिव ड्रग के तौर पर नहीं दे सकते, ठीक है. तो इसको हम एज ए यूरिकोसिरिक ड्रग नहीं दे सकते. पेन के लिए दे सकते हैं हर जगह पर, लेकिन बाकी और किसी कंडीशन में हम या किसी और उसके लिए नहीं दे सकते. और ये these are the beneficial points कि it has no hypersensitivity, it has no gastric effect, so it can be safely used in patient having a peptic ulcer or other problem. ठीक है. The important thing in the metabolism of acetaminophen is usually administered by the oral route.
but it is available now, it is available as a parenteral preparation. अब इसको हम IV रूट्स के तौर पर भी दे सकते हैं और इसकी सपोजिटरीज भी अवेलेबल हैं जो कि बच्चों में दी जा सकती हैं जो बच्चे छोटे होते हैं और ड्रग्स नहीं लेते, न्यूनेट्स या स्मॉल चिल्ड्रन, तो उसमें आप उसको इन द फॉर्म ऑफ सपोजिटरी दे सकते हैं थ्रू द एनल रूट. ठीक है, इट इज वेल एब्जॉर्ब, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इट इज मेटाबोलाइज इन द लीवर बाय 2. आपको पता है ना लीवर में क्या होता है कि लीवर में ड्रग मेटाबोलाइज किसके थ्रू होती है? एंजाइम्स के थ्रू होती है. ठीक है, so here acetaminophen is metabolized by 2 pathways. ठीक है, मेजर पाथवे में क्या होता है कि it is conjugated with sulfate and glucuronide and excreted out from the kidney. Small amount जो है, small amount is metabolized with the cytochrome P450 enzyme system and form toxic metabolite and this is the name of toxic metabolite, N-acetyl P-benzoquinone amine. This is a toxic metabolite. Normally at normal doses what will happen, it is conjugated with glutathione. It is conjugated with glutathione and excreted out, and glutathione जो है इसको non toxic कर देगा and it is excreted out from the kidney. But if in case of toxicity or in case of very higher doses, क्या होगा उसमें कि the enzyme will be depleted or saturated. Glutathione जो है it is depleted. ये जितना glutathione लीवर में है वो खत्म हो जाएगा और अब जो toxic metabolite है वो क्या करेगी? It will remains toxic and it bind with the liver cell, hepatic cell and causes the hepatic necrosis. ठीक है, hepatic necrosis. Otherwise, and this toxicity is very rare, but you should know about it at very higher doses of acetaminophen can cause hepatic necrosis. और इसकी एंटीडोट है या एंटागोनिस्ट है, that is known as N-acetyl इसकी है, मैं क्या ठहर जाए, इसकी है N-acetylcysteine, मिक्स हो रही थी मुझे. N-acetylcysteine is an antidote. अगर किसी पेशेंट में आपको है चांसेस, क्योंकि दिस हेपेटिक टॉक्सिसिटी रिक्वायर्स फ्यू आवर्स, आई थिंक 24 to 48 आवर्स. सो अगर कोई पेशेंट आपके पास ऐसा आता है तो यू कैन गिव N-acetylcysteine एंड कैन रिवर्स दिस हेपेटिक नेक्रोसिस, ये प्रिवेंट दिस हेपेटिक नेक्रोसिस. आप लोगों को पता होना चाहिए कि द बेसिक डोज इज नॉर्मल डोज ऑफ एसिटामाइनोफेन. अगर आप लोगों ने कोई देखी है टैबलेट, देखी है कभी आप लोगों ने टैबलेट इसकी देखा है? आप लोगों ने किसकी डोज कितनी होती है इसकी, एक टैबलेट में कितनी अमाउंट होती है? किसी ने नहीं देखी? हाँ, नहीं देखी. बट एक टैबलेट जो है ना इसकी होती है 250 मिलीग्राम की. कितनी होती है? 250. यस उसामा, वेरी गुड. इट इज 250 मिलीग्राम एक टैबलेट होती है. ठीक है, जो आम पैरास्टामोल होती है. इट इज यूजुअली इट इज अवेलेबल इन कॉम्बिनेशन एज वेल. ठीक है, आपने देखा होगा न्यूब्रोल फोर्ट है, उसमें भी एसिटामाइनोफेन है लेकिन 500 मिलीग्राम है. तो नॉर्मल डोज जो है वो एक टाइम की यूजुअली 500 मिलीग्राम. ठीक है, और आप उसको 4 टाइम्स तक इजीली दे सकते हैं. 4 टाइम दे सकते हैं, यानी 2000 या 2000 milligram you can safely given to a person, और 2 gram हम कह सकते हैं 2000 milligram and 2 gram you can safely given 4 times because it has very short half life, 3 to 4 hours, 2 to 3 hours. तो क्या होगा कि इसका इफेक्ट जल्दी खत्म हो जाता है. तो इसको हम एवरी आफ्टर 4 hours और आफ्टर 6 hours हम इसको दे सकते हैं. यूजुअली 6 hours देते हैं. अगर किसी बच्चे में या फीवर या ज्यादा हो तो उसमें रिक्वायर्ड हो तो उसमें हम आफ्टर 4 hours भी इसको दे सकते हैं. तो नॉर्मल डोज इसकी है 500 मिलीग्राम एट 1 टाइम, बट यूजुअली मैं खुद भी अगर लेती हूँ तो एक टैबलेट लेके मैं ठीक हो जाती हूँ.
ठीक है। तो यूजुअली अगर अगर ओवर वेट कोई बंदा है तो उसमें 500 मिलीग्राम ही लेनी चाहिए, लेकिन अगर नॉर्मल वेट का है तो उसमें एक टैबलेट भी इनिशियली आप उसको उससे ठीक हो जाते हो। ठीक है। तो आप लोग ये देखा करो कि कितनी डोज है, स्पेशली एनाल्जेसिक्स, स्पेशली कीमोथेराप्यूटिक एजेंट, बिकॉज ये आप लोगों ने आगे जाके प्रिस्क्राइब करने हैं। ठीक है। तो अगर एसिटामिनोफेन की टॉक्सिसिटी कब प्रोड्यूस होगी? व्हेन एनी पेशेंट टेक्स मोर देन 4 ग्राम या 4000 मिलीग्राम। ठीक है। आप 2000 तक के तो नॉर्मल दे सकते हो, इवन 3000 तक नॉर्मल दे सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर 4000 से या 4 मिलीग्राम ग्राम से ज्यादा आप डोज दोगे तो क्या होगा? पेशेंट में डेवलप दिस हेपेटिक नेक्रोसिस और हेपेटोटॉक्सिसिटी। एक और बात, हेपेटोटॉक्सिसिटी के चांसेस उन पेशेंट्स में ज्यादा होंगे जिनको पहले से हेपेटाइटिस है, या जो अल्कोहलिक है। ठीक है। या जिनको कोई और हेपेटिक प्रॉब्लम है। अगर एक नॉर्मल पर्सन है तो उसमें कंपैरेटिवली चांसेस कम होते हैं। अगर कोई लीवर प्रॉब्लम के साथ किसी का प्रॉब्लम है, देन द चांसेस में बी मोर। These are the clinical uses. As you all know, it can be used in mild to moderate pain. One thing you have to remember that all NSAIDs can be used in mild to moderate pain. ठीक है। Severe pain में usually we give in combination with opioids. Opioids have a strong pain relieving action as compared to NSAIDs. तो अगर किसी पेशेंट में आप देखते हो सीवियर पेन होती है या इवन पोस्ट ऑपरेटिव पेन होती है, तो उसमें या तो कॉम्बिनेशन में देते हैं या फिर ओपियोइड्स भी यूज किए जा सकते हैं। ओपियोइड्स हम वैसे कम प्रेफर करते हैं नॉर्मल कंडीशन में बिकॉज ऑफ द चांसेस ऑफ एडिक्शन। अगर आप उसको लंबे अरसे तक थोड़ा सा टाइम लेते हो तो क्या होता है, देयर इज अ चांसेस ऑफ एडिक्शन। तो इस वजह से जो है ओपियोइड्स को अवॉइड किया जाता है। बट अगर पेशेंट को मैलिग्नेंसी है या कैंसर है, उसकी पेन बहुत सीवियर होती है और उसमें यूजुअली ओपियोइड्स ही यूज किए जाते हैं। अदरवाइज माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए हम ये सारी एंसिड्स यूज करते हैं। कीटोरोलिक हमारे पास एक एंसिड है दैट हैज अ स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक इफेक्ट। कीटोरोलिक जो हम शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं और इट इज गिवन बाय द पैरेंटरल रूट। ओके। So paracetamol can be used as a headache in headache, myalgia, postpartum pain. It is used in replacement of aspirin in cases of aspirin hypersensitivity and contraindication. It is safely given in children with fever, peptic ulcer, patient with hemophilia. Hemophilia is a disease caused by the deficiency of factor 8. आपने एंटीकोगुलेंट पढ़े होंगे ना, तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा कोगुलेशन फैक्टर्स का। सो हीमोफीलिया इज अ डिजीज व्हिच इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 और इसमें ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं, यानी कोगुलेशन नहीं होती तो ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर हम एस्पिरिन देंगे तो क्या होगा कि पेशेंट में हैव अ ब्लीडिंग। सो एसिटामिनोफेन इज सेफ इन हीमोफीलिया। इट इज सेफ इन प्रेगनेंसी। The adverse effect it is very safe. आप ये याद रखें कि एट नॉर्मल डोजेस पे इसके कोई इफेक्ट नहीं है, बट इट शुड नॉट बी यूज मोर देन 1 to 2 weeks. ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते, इससे ज्यादा इस्तेमाल ना करें विदाउट ब्रेक। कंटिन्यूसली ना यूज करें बिकॉज इट मे कॉज इन ससेप्टेबल इंडिविजुअल, सब में नहीं, जो लोग जेनेटिकली प्रोन होंगे उनमें इट मे कॉज लीवर एनी प्रॉब्लम विद द लीवर। may cause, जरूरी नहीं है। Otherwise I have never seen any patient that face any problem with paracetamol or acetaminophen. ठीक है। Even my mother is taking the acetaminophen for the long period of time, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा प्रॉब्लम नजर नहीं आया। बहुत सारी बातें थियोरेटिकली होती हैं, या अगर 0.1% है या 0.5% है तो आपको बहुत कम देखने को मिलती है, रेयर होती है, बट रिसर्च शो कर रही होती है तो आपको उसको देखना होता है। So large doses में can cause nausea, vomiting, diarrhea, abdominal pain, and then severe hepatotoxicity and renal damage उस toxic doses में।
ट्रीटमेंट क्या होगी अगर अर्ली पेशेंट कोई आपके पास आ जाता है तो गैस्ट्रिक लिवाज, एक्टिवेटेड चारकोल। प्रोटोकॉल जो है पॉइजनिंग का या ट्रीटमेंट है पॉइजनिंग की वो ऑलमोस्ट सेम है, सिवाय कोई एंटीडोट जो भी डिफरेंट होगा और जो सिम्टम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली होती है। अगर पेशेंट ड्रग एब्सॉर्ब हो गई है, अगर पेशेंट को फिट्स डेवलप हो रहे हैं तो आपने फिट्स के लिए उसको डाइजीपाम वगैरह दे देनी है। अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव करने के लिए डोब्यूटामिन वगैरह दे देनी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द पेशेंट वी हैव टेकन द डिसीजन कि हमने क्या करना है या क्या देना है। अदरवाइज जो नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि एबीसी मेंटेन करनी है, जल्दी आ जाए तो गैस्ट्रिक लिवाज करना है, वो सब में सेम होता है। अब आपने एक और चीज याद करनी है कि इसकी एंटीडोट, दिस इज एन एसिटाइल सिस्टीन। You have to remember. Usually it is asked in the MCQs, even SCQs, even in the Viva. In case of paracetamol, acetaminophen poisoning, how we can treat or what is the antidote? So N-acetylcysteine is an antidote of acetaminophen. ठीक है? Clear? This is the difference between the acetaminophen and aspirin. Sometimes it is asked in the SCQs कि write down 4 to 5 difference between aspirin and acetaminophen, because ये दोनों बहुत difference हैं दोनों में। केमिकल डिफरेंस तो है ही, वो तो हर ड्रग में है, ठीक है, बट इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी चेंज है। एस्पिरिन इनहिबिट करती है COX-1 और COX-2 को इरिवर्सिबली, acetaminophen इनहिबिट करती है COX-3 को और वो भी रिवर्सिबली, ठीक है, and COX-3 is present in the brain. Aspirin has a strong anti-inflammatory effect. Acetaminophen का कोई anti-inflammatory effect नहीं है. Aspirin causes more chances of peptic ulcer या GI problem. Paracetamol के कोई chances नहीं है या very low chances to cause gastric irritation या peptic ulcer. ठीक है। एस्पिरिन लार्ज डोजेज में, जो टॉक्सिक डोजेज में एसिड बेस बैलेंस को डिस्टर्ब करती है, और एसिटामाइनोफेन जो है वो का कोई इफेक्ट नहीं है उसको डिस्टर्ब करने में, इलेक्ट्रोलाइट या एसिड बेस बैलेंस को। एस्पिरिन हैज अ एंटीप्लेटलेट इफेक्ट और वो कार्डियो प्रोटेक्टिव यूज होती है। एसिटामाइनोफेन का कोई इफेक्ट नहीं है प्लेटलेट्स पे और वो कार्डियो प्रोटेक्टिव यूज नहीं होती। एस्पिरिन जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है अल्सर में, पेप्टिक अल्सर में, अगर किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जैसे मैंने आपको बताया था हीमोफीलिया है, तो उन सब में, जबकि पैरासिटामोल जो है वो उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। अच्छा, एस्थमा, एक चीज और आपको लिखी हुई नजर आ रही है, एस्थमा। एस्पिरिन इज ऑल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एस्थमा, ठीक है, एंड एस्थमा, और रेस सिंड्रोम की वजह से वायरल इन्फेक्शन में हम नहीं देंगे। तो एस्थमा के चांसेस क्या होता है, बहुत सारी एस्पिरिन या एस्पिरिन लाइक ड्रग, अगर किसी को एस्थमा है तो दे मे हैव अ सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी विद एस्थमा, सॉरी, एस्पिरिन एंड एस्पिरिन लाइक ड्रग्स। क्यों होगी ये मैं आपको पीछे बताती हूँ थोड़ा सा इसके बारे में भी। ये आप देखो स्लाइड, आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर अराकिडोनिक एसिड इज अ प्रीकर्सर एंड इट कॉजेज द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस अलोंग विद द ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस, ठीक है। नॉर्मल पाथवे है कि ल्यूकोट्राइन्स भी बन रहे हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी बन रहे हैं, बट व्हेन वी ब्लॉक दिस पाथवे, साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे को जब हम एसिड देके ब्लॉक कर देंगे, एस्पिरिन देके ब्लॉक कर देंगे, तो क्या होगा, मोर अराकिडोनिक एसिड इज अवेलेबल, more arachidonic acid is available to synthesize more leukotrienes, and you all know that leukotrienes play a very important role in asthma pathophysiology, ठीक है ना। ल्यूकोट्राइंस आपने पढ़ा होगा ना कि ल्यूकोट्राइंस एंटागोनिस्ट भी यूज करते हैं एस्थमा में। सो प्रोस्टाग्लैंडिन की निस्बत ल्यूकोट्राइन का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एस्थमा में। इसलिए एस्पिरिन या कई दफा ब्रूफीन या एस्पिरिन लाइक जो भी, या नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स जो होते हैं, सम टाइम अगर कोई पेशेंट लेता है और उसको एस्थमा है तो उसको एस्थमा उसका एग्रीवेट हो जाता है, ठीक है, तो उन पेशेंट्स में हम एस्पिरिन नहीं देते, उसमें हम एसिटामाइनोफेन यूज करते हैं, पेन किलर। आपको पेशेंट आके बताएगा समटाइम कि जी डॉक्टर साहब मैं जब ये खाता हूँ तो मुझे जो है ना सांस लेने में मुश्किल होनी शुरू हो जाती है, तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि दैट पेशेंट हैविंग अ एस्पिरिन सेंसिटिविटी या एस्पिरिन हाइपर सेंसिटिविटी, और आपने वो ड्रग उसको नहीं देनी है और उस जैसी ड्रग्स भी नहीं देनी, क्योंकि चांसेस होते हैं कि उन ड्रग्स के साथ भी हो जाए। तो उसमें आप
या तो COX-2 इनहिबिटर्स दे देंगे या फिर आप उनको एसिटामाइनोफेन, सिंपली पैरासिटामोल देंगे। क्लियर है दिस पॉइंट? दिस इज क्लियर? यू गॉट माई पॉइंट? ओके, अगर आपको कोई चीज पूछनी है तो राइट इट डाउन द क्वेश्चन एंड यू कैन आस्क इन द एंड। ओके, क्लियर है कि आपने ये देख लिया, इसकी टॉक्सिसिटी और इसके डिफरेंसेस देख लिए हैं आप। अगर आपको नहीं भी, मतलब इट्स अ वेरी वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। जितने भी टॉपिक आप लोग पढ़ रहे होते हो, एनसीड इज वेरी वेरी इजी टॉपिक एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। आपने देखा होगा, मेरा नहीं ख्याल कि आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि इट इज अ वेरी इजी टॉपिक। तो आप इवन खुद लिख सकते हो कि एस्पिरिन और एस्टामाइनोफेन के डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है, now we come to the selective COX-2 inhibitor. Selective COX-2 inhibitors आपको अंदाजा है कि ये सारे जो नॉन सेलेक्टिव थे COX inhibitors, they causes the problem of peptic ulcer. सो साइंटिस्ट ने सोचा कि जी कोई ऐसी ड्रग होनी चाहिए जो कि ये पेप्टिक अल्सर का प्रॉब्लम ना करे, क्योंकि हर ड्रग, तकरीबन सारी एनसिड्स ही पेप्टिक अल्सर को एग्रीवेट करती हैं। ठीक है, एस्पिरिन का स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, लेकिन बाकी भी सब करती हैं। तो जनाब ये COX-2 इनहिबिटर का ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। This group of drug has no effect on the COX-1 enzyme, and you know COX-1 is involved in the blood homeostasis. It is involved in the gastric normal physiology. So COX का जो है कोई इफेक्ट नहीं है पेप्टिक अल्सर पे, ना इसका कोई इफेक्ट है प्लेटलेट एग्रीगेशन पे। It is only used as a anti-inflammatory or analgesic or antipyretic. So it can be used in rheumatoid arthritis, जो भी inflammatory conditions थी, osteoarthritis, dysmenorrhea, dental and acute musculoskeletal pain. But the problem with this group is, एक तरफ तो ये पेप्टिक अल्सर को अफेक्ट नहीं करता, बट ऑन द अदर हैंड it has more problem with cardiovascular disorders. क्यों cardiovascular disorders में ज्यादा इसको प्रॉब्लम है, हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। बिकॉज एस्प्रिन जो है, आपने देखा था एस्प्रिन एट वेरी स्मॉल डोजेज इनहिबिट द थ्रोम्बोक्सिन। क्या करती थी एस्प्रिन? क्या कर रही थी? एट वेरी स्मॉल डोजेज पे किसको इनहिबिट कर रही थी एस्प्रिन? थ्रोम्बोक्सिन को। थ्रोम्बोक्सिन इन्वॉल्व इन द प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, ये है एस्प्रिन। ठीक है, सो एस्प्रिन जो है किसको ब्लॉक कर रही थी? थ्रोम्बोक्सिन A2 को वेरी स्मॉल डोजेस पे। अब जो COX-2 इनहिबिटर्स हैं, दे इनहिबिट फर्स्ट प्रोस्टासाइक्लिन I2 या प्रोस्टाग्लैंडिन I2। अब आप एक याद, मैंने शायद आपसे डिस्कस भी की थी कि प्रोस्टासाइक्लिन जो है इट इनहिबिट द प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड इट कॉजेज वेजोडाइलेटेशन। जो थ्रोम्बोक्सिन है इट कॉजेज प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड इट कॉजेज वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। दोनों का ऑपोजिट इफेक्ट है, दोनों का इफेक्ट क्या है? ऑपोजिट है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली हमारी बॉडी में एक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, तो देयर इज नो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, वेजोडाइलेटेशन, प्लेटलेट एग्रीगेशन, एंड मतलब दोनों एक उसमें रहते हैं और नॉर्मल ब्लड फ्लो हमारी आर्टरीज में रहता है। ठीक है, लेकिन अगर हम देते हैं COX-2 इनहिबिटर्स, आपने ये तो देख लिया ना कि एस्प्रिन जो है वो थ्रोम्बोक्सिन को ज्यादा अरसे तक के लिए इनहिबिट करती है, लेकिन जो COX-2 है वो थेरेप्यूटिक डोजेस पर प्रोस्टासाइक्लिन को इनहिबिट करते हैं और थ्रोम्बोक्सिन पे उसका इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो अब जो है, जो इनहिबिटर था, प्लेटलेट एग्रीगेशन का इनहिबिटर था या वेजोडाइलेटर था, वो इनहिबिट हो गया। अब देयर इज मोर इफेक्ट ऑफ थ्रोम्बोक्सिन, एंड थ्रोम्बोक्सिन क्या करता है? प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। सो इट कैन कॉज the formation of thrombus, ठीक है, in the blood vessels and can block the vessels, or sometimes this thrombus can be separated from the wall and it can block the small blood vessels in the brain, in the cardiovascular system, like this, and decrease the blood flow at that area and causes myocardial infarction, cerebrovascular accident, जो फालेज आप देख लेते हो जाता है, CVA हो गया, तो it can cause this problem. So that's why it is not used as a first line anti-inflammatory and analgesic drugs.
still COX-1 and COX-2 are used commonly. It is only used if we have no chance कि जो है हमारे पास नहीं है कोई चांस, अगर किसी को पेप्टिक अल्सर है तो उसमें यूज करें, या अगर किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं तो उसमें थोड़ा बहुत इसका चांसेस है कि ये थ्रोम्बोक्सिन को करता है तो ब्लीडिंग को भी कम कर देगा। अब ये मुझे आप बताइए कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ है? इज इट क्लियर टू यू? आप इसको सेंटेंस में, आप एक कॉपी और एक पेन जरूर अपने पास रखा करें कि जो पॉइंट्स हमने लिखे हुए नहीं होते आप उसको नोट डाउन कर सको। आप इसमें नोट डाउन कर सकते हो कि एस्पिरिन का क्या है इफेक्ट, लो डोजेस पे थ्रोम्बोक्सिन को इनहिबिट करना। थ्रोम्बोक्सिन के ब्रैकेट में लिख लो प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। सो प्लेटलेट उसको इनहिबिट करेगी तो एस्पिरिन जो है इसका रोल होगा कि वो थ्रोम्बस फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देगी, ठीक है, इसको कम कर देगी। और जो COX-2 इनहिबिटर्स हैं वो प्रोस्टासाइक्लिन को या प्रोस्टाग्लैंडिन I2 को इनहिबिट करेंगे, और प्रोस्टाग्लैंडिन I2 क्या करती है एट द इनिशियल डोजेस, हायर डोजेस पे तो वो भी थ्रोम्बोक्सिन को करेंगे, लेकिन हमने तो एक नॉर्मल डोजेस देनी होती है ना पेशेंट को, थेराप्यूटिक डोजेस जिसपे वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करे, तो उस पर जो है ये प्रोस्टाग्लैंडिन I2 इनहिबिट होता है, और इसकी इनहिबिशन की वजह से जो क्या कहते हैं इनहिबिटरी इफेक्ट होता है प्लेटलेट एग्रीगेशन पर, और जो वेज़ोडाइलेटेशन होती है जिसकी वजह से ल्यूमन जो है वो आपका वाइड रहता है वेसल्स का, तो वो नहीं होता, तो इसकी वजह से चांसेस ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन इज मोर, दैट्स व्हाई इट कॉजेस मोर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, सेरिब्रोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स एज कंपेयर टू द अदर ड्रग्स। क्लियर है? The common adverse effects are dyspepsia, diarrhea, abdominal pain, ठीक है। Although it is very less, ये आपको possible बताए हुए हैं, otherwise they are not occur with this COX-2 inhibitors, books में लिखे हुए हैं तो मैं आपको बता दिए। It is contraindicated in sulfonamide allergy. Sulfonamide is an antibiotic and it is a common cause of hypersensitivity reaction. And COX-2, celecoxib और ये जो rofecoxib है, they are derivative of sulfonamides. So if patient having allergy with sulfonamide, then it is contraindicated. COX-2 inhibitors are also contraindicated. It should not be given in chronic renal insufficiency, severe heart disease, if patient having hypovolemia or any hepatic problem. ठीक है? अब तो आप लोगों के लिए बहुत इजी है कि आप इन स्लाइड्स का जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट है और जो पॉइंट्स हैं उनको रजिस्टर पे नोट डाउन कर सकते हो। तो काइंडली मेक अ नोट्स। दिस वन, महानूर, दिस इज द लास्ट स्लाइड। दीज आर द एडवर्स इफेक्ट, डिस्पेप्सिया, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, जो कि नजर नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन बुक में लिखे हुए। फिर कौन सी है? विच वन? दिस वन? Mahanur, please tell me which one? This one? This slide? You want to repeat it? Okay. क्यों रिपीट करनी है आपने ये स्लाइड? आप ये देख लो ना, यहाँ में दोनों थ्रोम्बोक्सिन और प्रोस्टासाइक्लिन का बताया हुआ है, और इसमें जो है ना आप इसकी पिक ले लो, ठीक है। वैसे क्लियर है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट कि वाई COX-2 इनहिबिटर, क्योंकि इट कैन बी आस्क्ड इन योर SEQs कि वाई COX-2 inhibitors causes more cardiovascular problem, तो उसमें आपने लिखना होगा कि क्यों करते हैं कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम ज्यादा। कॉन्सेप्ट नहीं बना इसका? अच्छा, अब आप दोबारा इसको कॉन्सेंट्रेट में दोबारा रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि बाकी सब चीजें बुक्स में लिखी हुई हैं, कुछ चीजें हैं जो कि नहीं है। अब क्या चीज आपको इसमें समझ में नहीं आई है? देखो, हमारे पास दो चीजें हैं। अगर हम ब्लड को देखें तो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन, हमें दो टाइप की प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है। नंबर 1 थ्रोम्बोक्सिन, ठीक है। नंबर 2 प्रोस्टासाइक्लिन। थ्रोम्बोक्सिन जो है वो प्लेटलेट के अंदर मौजूद होता है, और ये क्या करता है, प्लेटलेट की एग्रीगेशन करता है और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, ठीक है। और जो प्रोस्टासाइक्लिन है वो क्या करता है, प्रोस्टासाइक्लिन करता है वेजोडाइलेटेशन एंड इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन। क्लियर है? ठीक है।
अब क्या होता है कि हम एस्प्रिन को यूज करते हैं एज ए कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स। क्यों यूज करते हैं? बिकॉज एस्प्रिन क्या करती है, इरिवर्सिबली ब्लॉक करती है थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस को और इनहिबिट करती है प्लेटलेट एग्रीगेशन को। ठीक है, और प्लेटलेट्स में जो है वो इट इज अ नॉन न्यूक्लिएटेड सेल, न्यूक्लियस नहीं होता। सो जब तक दूसरा प्लेटलेट सिंथेसाइज नहीं होगा उस वक्त तक एस्प्रिन का इफेक्ट रहता है। इस वजह से एस्प्रिन का एंटी प्लेटलेट इफेक्ट जो है एक लंबे अरसे तक रहता है, इवन अप टू 7 डेज। अगर आपने कोई सर्जरी करनी है किसी पेशेंट की और वो एस्प्रिन ले रहा है, तो आपने उस पेशेंट से कहना है कि 1 हफ्ता पहले एस्प्रिन को बंद कर दे। अदरवाइज क्या होगा कि जब आप सर्जरी कर रहे होंगे तो एस्प्रिन देयर मे बी अ ब्लीडिंग, मोर ब्लीडिंग। क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट एस्प्रिन वाला? देखिए दोनों कॉन्सेप्ट साइड बाय साइड चल रहे हैं। सेकंड, अब हमें एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई COX-2 कॉजेज मोर कार्डियोवास्कुलर एडवर्स इफेक्ट, ठीक है, या डेथ बाय द कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। तो क्यों होती है? बिकॉज एट थेराप्यूटिक डोजेज, आप इसको बेशक लिख लो, कुछ चीजें होती है वो बार बार आप रिपीट करते हैं तो आपको समझ में आती है। एट थेराप्यूटिक डोजेज COX-2 इनहिबिटर्स इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन I2। थेराप्यूटिक डोजेस पे क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 को इनहिबिट करता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन I2 इनहिबिट होगा तो there is no vasodilatation and there is no inhibition of platelet aggregation। अगर आपको इन दोनों का इफेक्ट पता है, थ्रोम्बोक्सिन का और प्रोस्टासाइक्लिन का, फिर आप ये कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। अगर आपको इन दोनों का इफेक्ट नहीं पता तो ये कॉन्सेप्ट आपको कभी भी क्लियर नहीं होगा। क्लियर है? तो बहानूर आपने पहले दोनों का लिख लेना है कि दोनों का इफेक्ट्स क्या है, नॉर्मल इफेक्ट्स क्या हैं। उसके बाद आप लिखोगे कि जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन I2 ब्लॉक हो जाएगा तो देर इज नो इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन प्लेटलेट एग्रीगेशन। अब प्लेटलेट एग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया था। दिस इज द इफेक्ट ऑफ एस्प्रिन कि वो इनहिबिट कर रही है प्लेटलेट एग्रीगेशन को, एंड दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रोस्टासाइक्लिन या क्या कहते हैं COX-2 कि वो प्लेटलेट की एग्रीगेशन कर रहे हैं, क्योंकि अब प्रोस्टासाइक्लिन तो है नहीं जो कि उसको इनहिबिट करेगी। सो देयर इज अ मोर चांसेस टू डेवलप थ्रोम्बस फॉर्मेशन एंड देयर इज अ occlusion of artery और there is a problem with cardiovascular, sometimes patient may have a death क्योंकि blood supply heart को सफर करेगी, ब्रेन को अगर ये सेपरेट हो जाता है और एज ए एम्बुलेंस किसी वेसल में जाकर जो है वो उसको ब्लॉक कर देता है तो क्या होगा, देयर इज नो ब्लड सप्लाई और इसकी वजह से इस्कीमिया हो जाएगा, जैसे मायोकार्डियल इंफाक्शन होता है या ब्रेन में जो है वो सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होता है। ठीक है, तो प्रोस्टासाइक्लिन की इनहिबिशन की वजह से COX-2 इनहिबिटर्स इंक्रीज करते हैं कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स को, क्योंकि ये पहले प्रोस्टासाइक्लिन को इनहिबिट करता है और हायर डोजेस पे थ्रोम्बोक्सिन को इनहिबिट करता है। नाउ इट शुड बी क्लियर। ठीक हो गया? ओके, क्लियर हुआ है महानूर? बट एनसिड्स जो है ना, एनसिड्स नॉर्मली जो है वो सबको इनहिबिट करते हैं, इनका प्लेटलेट पे भी कोई बहुत ज्यादा एक्शन नहीं होता एक्सेप्ट एस्प्रिन के। All NSAIDs will not interfere या will not disturb the blood homeostasis normally। अगर किसी पेशेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो NSAIDs जो है वो ब्लड होम्योस्टेसिस को डिस्टर्ब नहीं करते एक्सेप्ट एस्प्रिन। एस्प्रिन इरिवर्सिबली ब्लॉक करता है थ्रोम्बोक्सिन को, और आपको पता है कि प्लेटलेट्स नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, तो जब तक नया प्लेटलेट नहीं बनेगा उस वक्त तक उसका इफेक्ट जो है वो कंटिन्यू रहेगा। इस वजह से एस्प्रिन जो है वो यूज होती है एज ए एंटीप्लेटिलेट। अदरवाइज ब्रूफिन या जो डाइक्लोफेनिक है, ये सब ड्रग्स हैज अ स्मॉल इफेक्ट, कैन ब्लॉक द एंजाइम थ्रोम्बोक्सिन A2 सिंथेसिस, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग क्योंकि ये रिवर्सिबल है उसके बाद वो उसको खत्म कर देते हैं। एस्प्रिन इरिवर्सिबल है इसलिए इसका इफेक्ट कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, और जो COX-2 इनहिबिटर्स हैं दे हैव डोमिनेंट इफेक्ट, इनिशियली दे हैव डोमिनेंट इफेक्ट ऑन द प्रोस्टाग्लैंडिन I2, ठीक है, जो कि इनहिबिट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को। तो जब हम उसका जो इनहिबिटर है प्लेटलेट एग्रीगेशन का उसको खत्म कर देंगे तो अब प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकने के लिए कोई चीज नहीं है, तो प्लेटलेट एग्रीगेट होना शुरू होंगे और उसकी वजह से प्रॉब्लम होगा। ठीक है, द ड्रग इंटरेक्शन
आप लोग उसको थोड़ा सा खुद भी पढ़ोगे ना, थोड़ी चीजें आपको क्लियर होंगी। आप लोग इसको आई थिंक 38 चैप्टर है लिपिन कॉर्ड में, आप लिपिन कॉर्ड से पढ़ लो, सफिशिएंट है। उसमें रोमेटॉइड आर्थराइटिस और उसका दिया हुआ है, डीमार्ट्स का दिया हुआ है ज्यादा, तो जो है ना वो आप लोगों को शायद कल हम करवाएंगे थोड़ा बहुत ब्रीफली। उसको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का वो आपने आज आप लोग कवर कर लोगे, ठीक है। सो ड्रग इंटरेक्शन दे इनहिबिट द एंजाइम CYP2C9, so it can increase the effect of um, um, not this drug, the not NSAID, but the fluconazole, fluvastatin, and zafirlukast. They are inhibitors of CYP2C9 और जो है वो COX2 inhibitors भी इससे मेटाबोलाइज होते हैं, तो they can increase the level, serum level of COX2 inhibitors. Celecoxib inhibit करता है CYP2D6 को, so it can increase the level of beta blocker, antihypertensive and antipsychotic drug. तो अगर किसी पेशेंट को आप देते हैं COX2 inhibitor, you should know the drug history. अगर वो बीटा ब्लॉकर ले रहा है या कोई और एंटी हाइपरटेंसिव ले रहा है तो आप उसको कॉशियसली दोगे, क्योंकि जितने भी जो एंसिड्स हैं दे कैन इंटरफियर इन द एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ड्रग्स। क्यों इंटरफेयर करेंगे? बिकॉज दे कॉजेज द सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन एंड कॉजेज एडिमा, इंक्रीज वर्कलोड, ठीक है, जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज हो सकता है। So this is the MCQ. अब जितनी भी छोटी छोटी ड्रग्स हैं वो आप लोगों ने खुद देख लेनी है इसके अंदर से, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको हम बहुत ज्यादा डिस्कस करें, ठीक है, कि जो है वो आइबुप्रोफीन का क्या है या इंडोमिथासिन का या जो भी है, प्रोटोटाइप ड्रग्स जो भी मेनली थी वो आपकी डिस्कस हो गई हैं। सो विच आंसर इज करेक्ट इन दिस? एनसेट का यूज करते हुए आपने सोचना नहीं है कि आपने कैसे करना है। नॉर्मली एनसेट्स का कोई इफेक्ट नहीं होता उन पे ना, जो ये हम सारा बात कर रहे हैं। COX2 का हो सकता है, ठीक है, जो कि हम कम यूज करते हैं। अगर वो भी 2-4 टैबलेट्स खानी हो, 2-4 दिन के लिए खानी होंगी तो नहीं होगा। ऐसा नहीं होता कि कोई थ्रोम्बस और एम्बुला जो फॉर्मेशन हो वो विद इन 2 to 3 days हो जाए, ठीक है। तो अगर लेकिन ये लॉन्ग टर्म में आप उसको यूज नहीं करोगे। करेक्ट उसामा, इट इज अ पेप्टिक अल्सर। सो COX2 का सिर्फ बेनिफिशियल पॉइंट क्या है कि इट इज सेफ इन पेप्टिक अल्सर, ठीक है। बाकी आइबुप्रोफिन, नेप्रोक्सिन, दे ऑल ठीक है, you can read it yourself. This is all about the non-steroidal anti-inflammatory drug. You can ask if you have any question. Is there any question? वाकई सब क्लियर हो गया है, हर चीज समझ में आ गई आपको। आप लोगों ने इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से करना है, ठीक है ना। I have told you the importance of this topic, so you should know all the classification, mechanism of action, clinical uses. बट ए फास्ट फूड, ये न्यू, इट इज अ न्यू रिसर्च सीरत, आपको मैंने उसको भी बताया था कि इट इज अ न्यू रिसर्च दैट ग्लूटामेट कैन इन्वॉल्व इन डिप्रेशन, नॉट इन एंजाइटी, ठीक है। एंजाइटी में भी हो सकता है क्योंकि ये क्या करते हैं, दिस इज अ ग्लूटामेट, आपको पता है ना कि दिस इज एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। जो एक्साइटेशन होती है इट कैन लीड्स टू एंजाइटी समटाइम। तो ग्लूटामेट जो है वो डिप्रेशन में तो इसका चल रहा है आजकल के जी, ग्लूटामेट जो भी हम फूड लेते हैं, आप देखते हो कि मोनोसोडियम MSD,
MSD इज अ टेस्ट इनहेंसर, चाइनीज सॉल्ट के नाम से आता है, और यूजुअली ये जितने भी आप लोग बाहर फास्ट फूड खाते हो और इवन बाकी फूड्स में भी, क्योंकि ये आपकी एपेटाइट को इम्प्रूव करता है, इंक्रीज करता है एपेटाइट को, सैटिस्फैक्टरी सेंटर को डिप्रेस करता है, डिक्रीज करता है। सो जो पेशेंट है, वो जो पेशेंट कह रही हूँ, जो भी है वो खाने के लिए आता है तो उसकी क्रेविंग बढ़ती रहती है, वो बार बार खाता रहता है, इंक्रीज अमाउंट में वो लेता है। तो ये सब जो रेस्टोरेंट्स हैं ये सब यूज करते हैं। और अब एक नई रिसर्च आ रही है, इवन कैटजंग में आ चुका है, कि ग्लूटामेट इज मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्रेशन, या इट हैज अ रोल इन फॉर्मिंग डिप्रेशन। तो ये है कि आपको आज सादा गज़ा जो है वो हमेशा से, सिंपल फूड जो है वो हमेशा से ही हेल्दी रहा है। और अब आई थिंक जितने प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं, स्पेशली एंजाइटी और डिप्रेशन, इसमें कहीं ना कहीं फूड का रोल है। आप लोग देखते हो ना कि अपनी सोसाइटी में कितना ज्यादा डिप्रेशन और कितनी एंजाइटी इंक्रीज हुई है, तो इसमें यकीनन इसका रोल है। तो अवॉइड करें, कोशिश करें अवॉइड करें। जो भी आप फूड खाना चाहते हो घर पे बना लो। आजकल तो जो है वैसे भी कोरोना की वजह से यूजुअली रिस्ट्रिक्ट हुई हुई ये चीजें, सब लोग मतलब प्रेफर करते हैं कि होममेड जो है फूड लें। ठीक है, क्लियर है सीरत? ओके, inshallah we will meet next week with chemotherapy. From next week we are going to start chemotherapy, and inshallah we will meet on Tuesday. Allah Hafiz.